નમસ્તે દર્શક મિત્રો, સાંપ્રત ઘટનાઓ પર આધારિત કાર્યક્રમ આપણા મુદ્દા આપણી વાતમાં હું નિશિત જોશી આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આજે સૌથી પહેલાં તો આપણા સૌ માટે, દરેક ભારતીય માટે એક ગૌરવની ક્ષણ છે, ગૌરવની પળ છે કે આજે બપોરે ચંદ્રયાન 3નું સફળ લોન્ચિંગ થયું છે. અને એ ઈસરો માટે પણ ગૌરવની વાત છે કે એમની જે વૈજ્ઞાનિકો છે એમની મહેનત રંગ લાવી છે. અને જ્યારે ઓગસ્ટમાં સફળતાપૂર્વક લેન્ડ કરે એવી આપણે આશા રાખીને કરશે જ, 100% સક્સેસ મેળવશે એવી આશા સાથે આજે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ફિનટેકની. અને એનું જે ટોપિકનું જે આપણું ટાઇટલ છે એ પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, ફિનટેક પોકેટમાં રોકેટ. કેમ એની આપણે વાત કરીશું. G20ની આપણે પહેલાં વાત કરીએ. હમણાં મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર ખાતે G20 નાણામંત્રીઓ અને સેન્ટ્રલ બેંક ગવર્નરો એટલે કે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર્સ એન્ડ સેન્ટ્રલ બેંક ગવર્નર્સ અને G20 ફાઇનાન્સ અને સેન્ટ્રલ બેંક ડેપ્યુટીઝની ત્રીજી બેઠક ગાંધીનગર ખાતે યોજાઈ રહી છે. આ અંતર્ગત ભારતીય G20 પ્રેસિડેન્સી હેઠળ ત્રીજી G20 નાણાપ્રધાનો અને સેન્ટ્રલ બેંક ગવર્નરો બેઠક 17 અને 18 જુલાઈ દરમિયાન યોજાવાની છે, જેમાં કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામન અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નર ડોક્ટર શક્તિકાંત દાસ સંયુક્ત રીતે બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે. FMCBG ડેપ્યુટીઝની બેઠક ગાંધીનગરમાં શરૂ થઈ ગઈ છે, જે આવતીકાલે પણ મળશે, એટલે કે 14 તારીખ અને 15 જુલાઈ. બેઠક દરમિયાન ઘણા બધા વિષયો પર વાત કરવામાં આવશે, જેમાં કે મલ્ટીલેટરલ ડેવલપમેન્ટ બેંકના રિફોર્મ્સ, દેવામાં ફસાયેલા દેશોને બહાર કાઢવા માટે કોમન ફ્રેમવર્ક કઈ રીતે, એટલે એક કોમન ફ્રેમવર્ક કઈ રીતે બનાવવું, ક્રિપ્ટો એસેટ્સ, ક્રિપ્ટો કરન્સીસની વાત થાય છે, એ અંગેના નિયમો જેવા વિષયો પર ચર્ચા કરવામાં આવે છે. આ કદાચ તમને થોડાક સમજવામાં અઘરા લાગતા હશે શબ્દો, પણ આપણે એને સરળતાથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આજે ફિનટેક વિશે ખાસ વાત કરીશું. ફિનટેક એટલે ફાઇનાન્શિયલ ટેકનોલોજી. એ શું છે, એના આવનારા સમયમાં કેવું ભવિષ્ય છે, એના પડકારો કયા છે અને એમાં કેવી તકો રહેલી છે, એની પણ ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં બે મહેમાન ઉપસ્થિત છે. તેમનો પરિચય મેળવી લઈએ. દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે જેઓ પોતાનું ખુદ સ્ટાર્ટઅપ ધરાવે છે એવો કેદારભાઈ દવે. કેદારભાઈ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું. અને જે બીજા મહેમાન છે એ છે આપણા અજય મિશ્રા, જેઓ સંવાદદાતા છે દૂરદર્શન दिल्ली थी. खास आ G20 बैठक ने कवर करवाया जाए. अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. अजय जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं. मैंने जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में किया, जो फिनांस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग 17-18 जुलाई को है, वो एक है. अभी आप कवर करके आए जो आज और कल, तो वो डेप्यूटीज़ की जो मीटिंग है, पहले तो ये दोनों में अंतर क्या है वो बताइए. आज और कल में क्या चर्चा, आज क्या हुई, कल क्या होगी, और 17 और 18 जुलाई को क्या होगा, उसके ऊपर थोड़ा हमें बताइए. तो निश्चित बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए. सबसे पहले तो आपको पता है कि जो G20 है उसकी जो बैठक है वो गांधीनगर में जो तीसरी बैठक है, FMCBG, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा. तो G20 के दो ट्रैक हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक. तो आप समझिए कि जो पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र या आर्थिक विषयों से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे G20 के देशों को और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनको हमने इनवाइट किया है, स्पेशल देशों को इनवाइट किया है, कैसे उनको सहमति के आधार पर कुछ एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जाए. फाइनेंस ट्रैक में आर्थिक मुद्दे तय किए जाते हैं और शेरपा ट्रैक में जो गैर आर्थिक मुद्दे हैं उन पे कैसे मिसाल के तौर पर करप्शन को लेके या फिर आतंकवाद को लेकर के, तो नॉन इकोनॉमिक इश्यूज़ को आप शेरपा ट्रैक में कवर करते हैं. जितने आर्थिक मुद्दे हैं उनको फाइनेंस ट्रैक में अगर हम बात करें तो 8 वर्किंग ग्रुप्स हैं जी. शेरपा ट्रैक में 13 वर्किंग ग्रुप्स हैं और देश के अलग अलग 50 शहरों में उस पर चर्चाएं चल रही हैं. जो 8 वर्किंग ग्रुप फाइनेंस ट्रैक के अंदर हैं, उनकी जो भी कामकाज अभी तक हुए हैं, उनकी वर्किंग ग्रुप की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको डेप्यूटीज़ लेवल पे पहले फाइन ट्यून किया जाता है. तो जो आज बैठक आप कह रहे हैं, जो आज बैठक शुरू हुई है FMCB डेप्यूटीज़ की, वो सारे के सारे वर्किंग ग्रुप्स के जो आउटकम्स हैं, 8 वर्किंग ग्रुप के 8 आउटकम्स जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया है, एक आउटकम डॉक्यूमेंट बनाएंगे ये लोग. और उसके बाद ये एक ऊपर लेवल, यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो G20 के हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं अलग अलग देशों के, आएंगे गांधीनगर में. आप देखिए कि 520 डेलीगेट्स आएंगे जी. 60 से ज़्यादा डेलीगेशंस हमने बुलाए हैं. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस ट्रैक मीटिंग. इसकी आधारशिला आज से बननी शुरू हो गई है, 3 दिनों में बनेगी और 17-18 को जब वो आधारशिला तैयार हो जाएगी तो उस पर निर्णय होगा. 17 और 18 को जो ये अहम बैठक होने वाली है जी. आपने फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक की बात की, तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए. दोनों का अर्थ क्या होता है, फाइनेंस ट्रैक क्या होता है, शेरपा ट्रैक क्या होता है. तो फाइनेंस ट्रैक जो देश अध्यक्षता कर रहा होता है, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उस पूरे ट्रैक को चेयर करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं. और केंद्रीय बैंक जो जैसे हमारे देश का रिजर्व बैंक है, तो उसके गवर्नर उसके हिस्सा होंगे.
तो अगर आप देखें वैश्विक परिस्थिति में, तो कोविड के बाद में पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की समस्या रही, ग्लोबल ग्रोथ में हमने डाउनफॉल देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेकर के बहुत मुश्किलें आई। बहुत सारे देश हैं, जैसे 56 से ज़्यादा देश हैं जो कि डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिन पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उनको मदद नहीं की गई तो वो कर्ज के तले दबे रह जाएंगे और उनको मुश्किल होगी। श्रीलंका और पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे मुद्दों को आप फाइनेंस ट्रैक में रखते हैं। फ्यूचर में आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस की तैयार करें, सिटीज़ ऑफ फ्यूचर है उनके लिए कैसे मैकेनिज्म तैयार करके ले आएँ। क्रिप्टो एसेट्स को लेकर के जो प्रेसिडेंसी होती है वो अपने कुछ डिवाइस करती है, कुछ नए प्रपोजल्स लेकर। भारत ने क्या प्रपोजल लिया है कि हम क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए एक आम सहमत बनाएंगे। दूसरा, भारत ने ये कहा है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, जो शेरपा ट्रैक का एक हिस्सा है। हमने स्टार्टअप 20 का निर्माण किया है, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे केदार भाई उस पर प्रकाश डालेंगे। तो ये कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जो हम लेकर के आए हैं। जैसे मैंने बताया कि शेरपा ट्रैक नॉन इकोनॉमिक इश्यूज़ को सामने रखता है, उस पर सहमत करता है, और इकोनॉमिक आर्थिक मुद्दों पर ये चर्चा, मतलब कोई भी समस्या है तो उसको सॉल्व करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो फाइनेंस ट्रैक एक तरह से डिस्कस करके उस पर सहमत बनाएगा, और समस्याओं और उसके जो समाधान है, जो पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस हैं, उस पर शेरपा ट्रैक बहस करता है। जी अशोक जी, अजय जी, बहुत अच्छे से आपने सिंपल भाषा में सरल तरह से आपने दर्शकों को समझाया। કેદારભાઈ આપની પાસે આવવા માંગીશ। અજય મિશ્રાએ ઘણી બધી વાતો કરી અને એમાં એમણે સ્ટાર્ટઅપની પણ વાત કરી। આપણા દેશની જો વાત કરીએ તો સ્ટાર્ટઅપની વાત કરીએ તો થર્ડ લાર્જેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ છે આપણો દેશમાં। આપ પોતે પણ એક સ્ટાર્ટઅપ ચલાવો છો। હવે આ જે અત્યારે જે આ પણ મિટિંગ્સ થઈ રહી છે G20ની, એમાં ફિનટેક પર પ્રાઇમ ફોકસ રહેશે। ફાઇનાન્શિયલ ટેકનોલોજી એની જો વાત કરવામાં આવે તો પહેલાં તો ફિનાન્શિયલ ટેકનોલોજી એટલે શું, એટલે જેને ફિનટેક કહે છે, એમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે, એના વિશે શું કહેશો? સો ઓવરઓલ જે ફિનટેક ઇકોસિસ્ટમ છે, ફિનટેક ઇકોસિસ્ટમ એક ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને ટેકનોલોજીમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય, મતલબ નોર્મલી ફાઇનાન્સ જે છે એ અલગ અલગ જગ્યાએ સેટ થયેલું છે। મતલબ એક અસેટ ફાઇનાન્સ કહેવાય, એક લાયબિલિટી ફાઇનાન્સ કહેવાય, એક ટ્રેઝરી ફાઇનાન્સ કહેવાય, और એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફાઇનાન્સ કહેવાય। સો ઓવરઓલ આ જે ડિફરન્ટ ફાઇનાન્શિયલ મોડ્યુલ્સ છે એ બધાની અંદર ટેકનોલોજી કેવી રીતે આવે અને ટેકનોલોજી કેવી રીતે એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને ઇઝી બનાવે અને એક ઓપન માર્કેટ ક્રિએટ કરી આપે। સો જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપણે ઘણું પિયર ટુ પિયર લેન્ડિંગનું એક એક્ઝામ્પલ છે કે ઇકોસિસ્ટમમાં પિયર ટુ પિયર લેન્ડિંગની એક ઓવરઓલ ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થઈ ફિનટેકને કારણે। નાઉ પિયર ટુ પિયર લેન્ડિંગ એટલે અર્લિયર જે બેંક્સ અને NBFCs એ લોન આપતી હતી, હવે પિયર ટુ પિયર લેન્ડિંગને કારણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લોકો જે છે એમને એક લીગલાઇઝ વેમાં, એક સ્ટ્રક્ચર વેમાં કોઈ બીજા ઇન્ડિવિજ્યુઅલને લોન આપવી હોય તો પિયર ટુ પિયર લેન્ડિંગના પ્લેટફોર્મ યુઝ કરીને એ લોકો એ પોતાના લોન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરી શકે છે। બરાબર છે। સેકન્ડ, ઘણા જેમ કે ક્રિપ્ટોની વાત થઈ આપણે, તો એવા એક્સચેન્જીસ બી ઊભા થયા કે જે ક્રિપ્ટો જેવા એક મોડલમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે। નાઓ એ એક્સચેન્જ મોડલ કહેવાય ફિનટેકની અંદર, જેમ કે પિયર ટુ પિયર આપણે અલગ જોયું। આવી રીતે ફર્ધર આપણે આગળ જઈએ સો ઘણા APIs બેંક અને RBIની APIsના થી આપણને પ્રીપેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ કરીને એક મોડલ ચાલુ થયું, જેને કારણે આપણે વોલેટ્સ ચેક કર્યા, આપણે UPI અત્યારે જે કરી રહ્યા છે, આ બધા જે ટ્રાન્ઝેક્શનલ ઇઝીનેસ અને સ્મૂથનેસ કરવા માટેના જેટલા બી મોડલ્સ ફાઇનાન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે છે એને એક ફિનટેકનો દરજ્જો આપવામાં આવે છે। બરાબર છે। સો ઓવરઓલ અત્યારે જે ડિસ્કશન્સ થઈ રહ્યા છે G20 સમિટની અંદર, એની અંદર ફિનટેક એક ઘણો મોટો એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો રહેવો જરૂરી છે, કારણ કે ઘણા એવા એરિયાઝ છે કે જેની ઉપર નયા નિયમો, નયા મુદ્દા અને એની પર ડિસ્કશન કરવું અત્યારના માર્કેટ માટે ઘણું જરૂરી છે। સો એવી નવી પ્રોસેસ બને જેના કારણે નવો બિઝનેસ શરૂ થઈ શકે આ એરિયામાં। સો ઓવરઓલ ફિનટેક ઇન્ડસ્ટ્રી એક અપકમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી આપણે કહી શકાય, અને G20માં એનો સમાવેશ કરી અને ગવર્મેન્ટનું ફોકસ એની પર લાવવું એ ઘણું જ મહત્વનું હતું અને જે દેખાઈ રહ્યું છે કે જેની ઉપર કામ થઈ શકે છે। બહુ મહત્વની વાત કરીએ। આજે આગળ હું ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર વાત કરવા માગું છું કેદારભાઈ, હું આવું છું આપની પાસે। આજે आपने ओवरऑल एक सिनारियो बताया कि जो आने वाले 17 या 18 तारीख तक होने वाला है, खास करके हम अपने भारत देश की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ लाने के लिए ये जो समिट है और भारत उसमें किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सकता है? तो देखिए, जो भारत की G20 की प्रेसिडेंसी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि भारत न केवल अपने हितों की बात कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल साउथ
ग्लोबल नॉर्थ आप एक एलीट या विकसित देश के रूप में इमेजिन कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ जो अंडर डेवलपमेंट है या फिर डेवलपिंग नेशंस हैं या अविकसित देश हैं, उनकी बात करें तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बड़े लोगों की बात, विकसित देशों की बात, उनके हितों की बात हमेशा से रखी जाती है। भारत एक ऐसे ग्लोबल चैंपियन के तौर पर उभरा है G20 प्रेसिडेंसी के दौरान, जिसमें उसको एक ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में देखा जाता है। और ये सवाल फ्रेंच मैगजीन ने जब प्रधानमंत्री मोदी से पूछा पेरिस में कि क्या एक लीडर के तौर पर भारत उभर रहा है, उन्होंने कहा कि हम लीडर जैसा शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, हम उन कमज़ोर आवाज़ों की एक सशक्त भूमिका में अपने आप को देखते हैं। और हमें लगता है कि जब तक भारत जैसे बड़े देश और विकसित जो विकासशील देश हैं या फिर जो अविकसित देश हैं, उनके मुद्दे अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आप को ग्लोबल नहीं कह सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात कि हम कैसे ग्लोबल ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं। आपने देखा कि इन्फ्लेशन इस कोविड के बाद में एक बहुत बड़ी समस्या बन कर के आया, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में बढ़ने लगे। और उसी बीच में हमने फिनटेक रेवोल्यूशन देखा। भारत ने फिनटेक रेवोल्यूशन देखा और हमने निश्चित आपको बताएं कि जो फिनटेक है ना, उसके दो मॉडल पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। एक मॉडल आप वेस्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनीज पूरे रेवोल्यूशन को ड्राइव कर रही हैं। टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है। एक मॉडल देश ने बनाया, भारत ने बनाया, जिसको हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जो कि सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया। उस पर बहुत सारे फिनटेक सॉल्यूशंस के स्टार्टअप्स आए और उसने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, आधार जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, हमने जो जैम ट्रिनिटी बनाई उसका इस्तेमाल किया। तो हमने दुनिया को एक मॉडल दिया कि हम एक सरकारी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ओपन टू ऑल, विच विल बी ओपन एक्सेस सिस्टम। उसका लोग इस्तेमाल करें और कैसे सॉल्यूशंस देने के लिए उसको आप एक तरह से उसमें अपने साझेदारी कर सकते हैं। अमेरिका में जो मॉडल है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, सरकार के सेक्टर के हाथ में नहीं। माइक्रोसॉफ्ट कुछ करेगा, गूगल उसको कम्पीट करेगा, गूगल कुछ करेगा, मेटा को ट्विटर कम्पीट करेगा। तो वो कॉम्पिटिशन से ड्राइव होता है और वहाँ पे एफिशिएंसी निकलती है, उसके एक अलग मॉडल। देश ने, भारत ने एक नया मॉडल दिया है कि साहब हम एक कोविन जैसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो ओपन टू एक्सेस होगा और हम 50 से ज़्यादा देशों को दे सकते हैं, ओपन है। इसी तरह से हम आधार बनाएंगे जिसका सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उस डेटाबेस का। हम एक यूपीआई बनाएंगे जिससे बहुत सारे, केदार भाई जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आकर के उसका इस्तेमाल करके अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं। दुनिया को तय करना है उनको भारत का मॉडल चाहिए या वेस्ट का मॉडल चाहिए, और यही हम मॉडल नए लेकर के आ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल गुड में हम विश्वास रखते हैं। हम पब्लिक गुड की बात कर रहे हैं, डीपीआई डिजिटल पब्लिक गुड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कैसे ग्लोबल गुड के लिए करें, वही हमारा सेंट्रल फोकस है। मुझे लगता है कि G20 की पूरी जो बहस है, भारत अपने केंद्र में उसी फोकस को रख रहा है। जी, बहुत बढ़िया। केदार भाई, जे अजय मिश्रा जीए जे વાત કરી અને એમણે એક વૈશ્વિક પરિપ્રેક્ષ્ય જે ફિનટેકનો છે એને ભારતનો પરિપ્રેક્ષ્ય, એમાં આપ કંઈ એડ કરવા માંગતા હો તો? સો એ જ જેમ અજયભાઈ કીધું કે ઇન્ડિયા ઇઝ વર્કિંગ સાથે સાથે, સો ઇન્ડિયા અને ભારત અત્યારે આ દેશમાં બંને ઇકોસિસ્ટમ સાથે ચાલી રહી છે. સો વેન વી કમ્પેર ઇન્ડિયા અને ભારત, બંને માર્કેટ માટે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ લાવવી બહુ જ જરૂરી છે ઇન ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન. બરાબર. સો જેટલું આપણે રૂરલ એરિયામાં જઈએ છીએ, ફર્ધર એરિયામાં જઈએ છીએ, there are lot of companies they are transacting માટે કામ કરી રહી છે કે એ એરિયામાંથી જેટલું ડિજિટલાઇઝેશન થઈ શકે. અમુક કંપનીઝ છે એ ફોરેન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ પ્લસ મેટ્રો સિટીઝના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર ફોકસ કરી રહી છે. સો ઓવરઓલ યસ, ઇન્ડિયન ઇકોસિસ્ટમમાં ગવર્મેન્ટે જે બેઝ ઊભો કરીને આપ્યો છે, એન્ડ આફ્ટર 2016 વી હેવ સીન અ લાર્જ ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ ઓન ધ ડિજિટલાઇઝેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ મોડલ્સ, એન્ડ પ્લસ આરબીઆઈઝ એન્ડ બેંક્સ આર વેરી મચ ઓપન ટુ ગીવ એપીઆઈઝ, કે બધાને એપીઆઈઝ બી આપી શકે છે. તો એના કારણે ઘણા રેવોલ્યુશન નવા પ્રોડક્ટ્સ બહાર આવી શક્યા છે. બરાબર છે. સો ઓવરઓલ ઇકોસિસ્ટમ જાતે ઊભી કરવી અને ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ સાથે ઊભી થવી, એનો ફરક અત્યારે જોઈ શકાય છે કે જે સપોર્ટ ઘણો સારો મળી રહ્યો છે. जी बिल्कुल. अजय जी, दूसरा जो प्रश्न है कि एमडीबी की हम बात करें, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, पहले तो ये कंसेप्ट क्या है और किस तरह से ये काम करती है, और उसको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एड्रेस में भी एमडीबी के बारे में जिक्र किया था, तो अभी उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी पेरिस में ही एक बयान दिया है कि जब तक आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपने मल्टीलेटरल बैंक्स की कामकाज में शामिल नहीं करते हैं, उन्होंने यूएनएससी का नाम लिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से वैश्विक हैं? भारत को आपको शामिल करना पड़ेगा। उन्होंने यूएनएससी के संदर्भ में कहा था, लेकिन लगातार भारत इस बात की कोशिश करता रहा है कि जो संस्थाएं
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से बनी, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और ILO जैसी संस्थाएं शामिल हैं, उनको बदलते हुए परिदृश्य में कैसे हम और ज़्यादा रेलेवेंट बना सकते हैं, प्रासंगिक बना सकते हैं। जी जब तक आप केवल विकसित देशों के हितों को रखेंगे, आप केवल लोन उन देशों को देंगे जो कि विकसित हैं और वहाँ पर नहीं देंगे जहाँ पर ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल साउथ है उसमें सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आप वहाँ पर ग्रांट्स ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, आप लोन उनको नहीं देंगे, सॉफ्ट लोन्स नहीं देंगे, तो वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? न तो आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, न तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और इन वैश्विक मंचों पर आप कहते हैं कि आप सबके हितों का ख्याल रखते हैं और सबके लिए आप मंच बनाए हैं। तो ये एक क्या है कि जो एक दोहरा मापदंड है वो नहीं चलेगा। और भारत हमेशा इस बात को कहता रहता है कि जब तक हम फिनटेक रेवोल्यूशन में अगर भारत पूरे दुनिया के पेमेंट सिस्टम का 40% अपने यहाँ कर रहा है, तो हम IMF जैसी या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में अपनी प्रमुख भूमिका क्यों नहीं हमारी सुनी जाती है? और फिर एक हम ये चाहते हैं कि हम कैसे, जो जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, उसमें विकसित देशों की बात ज़्यादा तरीके से सुनी जाती है, पुरजोर तरीके से सुनी जाती है। उनका चूँकि कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए वो अपने हिसाब से रूल्स को अपने ट्वीक करते हैं। भारत ये चाहता है कि विकासशील देशों की भाषा या फिर उनके जो मुद्दे हैं उनको शामिल किया जाए, और इसी लगातार रिफॉर्म करने की कोशिश किया है कि जो कोटा सिस्टम है उसका, जिसमें विकासशील देशों का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए, उनकी बात को सुना जाना चाहिए, उस पर रिफॉर्म्स की बात करें। और इसी मीटिंग में आपको बताएं कि पहली रिपोर्ट G20 प्रेसिडेंसी ने NK सिंह साहब और एक US के वो क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट हैं, लैरी सैमर्स, उनकी अध्यक्षता में, और 7 और इकोनॉमिस्ट हैं। पहली रिपोर्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के रिफॉर्म्स की रखी जाएगी, और ये G20 देशों की सहमति के बाद हुआ है। तो भारत के लोग सुन रहे हैं बात, और ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। 18 तारीख को ये पब्लिक हो जाएगी, और क्या कुछ रिकमेंडेशंस हैं उस पर मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ेगी। बिल्कुल, दुनिया में नई बहस छिड़ेगी। કેદાર ભાઈ, ઇન્ડિયાના જો ફિનટેકની વાત કરીએ આપણે, તો ઇન્ડિયામાં અત્યારે કેવા પ્રકારનો સિનારીઓ છે એઝ ફાર એઝ ફિનટેક ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ કન્સર્ન? સો ઇન્ડિયાની ફિનટેક ઇન્ડસ્ટ્રીએ ઘણા રેવોલ્યુશન અને ઘણા મુવમેન્ટ્સ લાવવામાં આવ્યા. સો સર્ટન માર્કેટ્સ જે ક્રિએટેડ નહોતા એવા માર્કેટ્સ ખુદ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યા. સો વી કેન ટેક અ જર્ની 2010થી આપણે જો ચાલુ કરીએ અર્લિયર, તો જ્યારથી ઇન્ટરનેટ આવ્યું, સો ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ડિજિટલ કરવાનું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક મોડલ ચાલુ થયું. બિલકુલ. સો ઇવન વી કેન સે પેમેન્ટ ગેટવેઝને જે એગ્રીગેટર્સ બન્યા, ધીઝ વર ધ ફર્સ્ટ ઇનિશિયેટિવ જે તમને બધી વસ્તુ ઓનલાઈન ખરીદવા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપવાની ચાલુ કરી. દેન તમે સ્ટેપ આગળ લેવાના ચાલુ કરો તો ધીરે ધીરે વન્સ યુ સ્ટાર્ટ બાઇંગ ઓનલાઈન, પછી ધીરે તમને પ્રેક્ટિસ પડવા માટે કે હું બીજાને પૈસા બી મોકલી શકું છું ને રિસીવ બી કરી શકું છું. દેન ધ UPI એન્ડ ધ Paytm, ધેસ કાઇન્ડ ઓફ કોન્સેપ્ટ કેમ ઇન ટુ ધ ઇન્ડિયા એઝ અ ફિનટેક. એના પછી ધીરે ધીરે કે ઓનલાઈન હું આ બધું કરી શકું છું, તો હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી કરી શકું છું. તો એમ કરતાં કરતાં ઝીરોદા એન્ડ અપસ્ટોક્સ, ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કંપનીઝ કેમ, અને એ લોકો એક નવો સ્ટેપ આગળ વધાર્યો. એના પછી ફરી આગળ એક ક્રિપ્ટોની ઇકોનોમી આવી કે ભાઈ ઓકે આ બી હું કરી શકું છું, લેટ મી એક્સપ્લોર સમથિંગ ન્યૂ. દેન સ્લોલી કરતાં કરતાં બ્લોકચેન કેમ ઇન ટુ ધ માર્કેટ એન્ડ લોટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન બીકમ સો મચ સિક્યોર. સો એ ફરી એક એજ આપી કે જેના કારણે પિયર ટુ પિયર લેન્ડિંગ છે, લિક્વિડ લોન્સ છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોડલ્સ, ઘણા ઓલ્ટરનેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ચાલુ થયા ફિનટેક. અને ધીરે ધીરે જે બેંક ઉપર જે પ્રેશર આવતું હતું એ ધીરે ધીરે ઓછું થવા માંડ્યું, જેના કારણે બેંક્સને બી એક ઇઝીનેસ મળી કે જે ઓવરઓલ ઇકોસિસ્ટમમાં એમના જે કોર બિઝનેસ છે ત્યાં આગળ એ લોકો વધી શકે છે. સો દેટ્સ હાઉ અત્યાર સુધી ઘણા કંપનીઓએ ઓવર 12 થી 15 વર્ષની અંદર ઇકોસિસ્ટમ ડેવલપ કરી છે. અને આજે એ બધાના સાથે જેટલા બી સપોર્ટ અને નવા ગાઈડલાઇન્સ બન્યા એને ધ્યાનમાં રાખીને નવા નવા ફીચર્સ બી એડ થતા જઈ રહ્યા છે ફિનટેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. ઓકે, બહુ મહત્વની વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રો જે અત્યારે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરે છે અથવા તો ટ્રાન્સફર કરે છે, તો એક ફાઇનાન્શિયલ ટેકનોલોજીનો દે આર યુઝિંગ, એ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. એ સરળ ભાષામાં એમને એ પણ એક ફિનટેકનો જ ભાગ છે. बराबर છે. अजय, आपने एक शुरुआत में जब बात की तो आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, या फिर ऐसा कहूँगा हिंदी में कहा था कि जो डेप्स बढ़ गए हैं कंट्रीज, अनसस्टेनेबल डेप्ट की बात करें तो G20 में ये मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में रहेगा आने वाले दिनों में. ये कितना गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इससे निपटने के लिए किस तरह के जो कदम उठाने वाले हैं आने वाले देशों आने वाले दिनों में G20 कंट्रीज? ये निश्चित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और भारत ये चाहता है कि जो 50 से ज़्यादा देश डेट के कर्ज में दबे हुए हैं और कोविड की वजह से अपने डेट का रीपेमेंट नहीं कर पाए हैं, जैसे फिनटेक में भी ये होता है कि भाई आप अगर आप उधार नहीं चुका पाते हैं तो आप कैसे करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे. बिल्कुल.
अब देशों के लेवल पर क्या IMF और वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स हैं या फिर कुछ देशों ने उनको लोन दे रखा है, जिसमें चाइना को बहुत प्रोमिनेंट लेंडर के रूप में कहा जा रहा है कि वो डेट ट्रैप में जानबूझ करके जो 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 देश हैं उनको फंसा करके और वहाँ पर अपने तरीके से अपनी कूटनीति या राजनीति को विस्तार देना चाहता है। ये कुछ लोगों का कहना है। तो कैसे हम उनका एक मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं, कॉमन फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं डेट रेजोल्यूशन का, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों से निकलते हुए जब आप देखते हैं कि बहुत जो गरीब देश हैं, जो अफ्रीकन देश हैं मिसाल के तौर पर, वहाँ पर इन्फ्लेशन की समस्या इतनी बड़ी है, अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स की समस्या इतनी बड़ी है, वहाँ पर प्रॉपर फंडिंग नहीं है लोगों के बेसिक्स के लिए, तो क्या हम कुछ समय के लिए उनके डेट को टाल सकते हैं? क्या हम उनको मॉरेटोरियम दे सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर उनकी जो शर्तें हैं उसमें कुछ ढील दे सकते हैं? ठीक है। जैसे कैसे कोई एक बैंक किसी अपने लेंडर के साथ करता है, तो ये एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम मुश्किल परिस्थितियों में उनका साथ देने की कोशिश की जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसके अलावा जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो डेट के साथ साथ क्रिप्टो एसेट्स का रेगुलेशन कैसे किया जाए, DPIs को कैसे आप प्रोडक्टिविटी गेन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो सिटीज़ ऑफ फ्यूचर हैं उनके लिए आप कैसे नई फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो जब हम फिनटेक की बात करते हो, मुझे खुशी है कि जब हम चाँद पर पहुंचने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने बहुत ही बढ़िया आज जो टाइटल रखा है अपने प्रोग्राम का कि पॉकेट में रॉकेट, उससे कुछ मिलता हुआ, तो उस पर मैं बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तीसरी, वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ 30-32 किलोमीटर दूर एक बड़ा फिनटेक रेवोल्यूशन इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, वो है गिफ्ट सिटी। आप देखिए, क्योंकि SGX निफ्टी था, वो गिफ्ट निफ्टी के तौर पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स जैसे बढ़ेंगे तो एक नए मॉडल के तौर पर ये गिफ्ट सिटी पूरी दुनिया में आएगा। और मुझे लगता है कि वहाँ पर जो टेक्निकल सेशंस हैं, और उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो टेक्निकल सेशंस हैं, स्पष्ट तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पे, गवर्नर के लेवल पर वो लोग इंटरनेशनल टैक्स इवेजन को डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड विल बी गोइंग टू बी ओपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे आप टैकल करें वैश्विक स्तर पर, ये सब लोग बैठ करके चर्चा करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के राउंड टेबल होने वाला है, गिफ्ट सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और किस तरह से आप MDBs को लेकर के वहाँ पर एक वर्कशॉप होगा। पेमेंट सिस्टम कोई इंटरलिंकिंग को लेकर के भारत और आप जानते हैं कि सिंगापुर के बीच में करार हो गया है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि आप देखेंगे 18 तारीख के बाद कि आपको वो खबरें आएंगी कि भारत ने कुछ और देशों के साथ में अपने UPI पेमेंट को लिंक करने का आपने अब फैसला लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो तीसरी FMCBG मीटिंग है गांधीनगर में, बहुत ही एप्ट है, न केवल फिनटेक बल्कि आर्थिक मोर्चे पर कुछ न कुछ आपको 18 तारीख को कुछ बड़े खबरें दिखाई जाएंगी। जो फाइनल आउटकम आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और मेरी जो बहुत सारे डेलीगेशंस उनसे बात हुई है, इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना, वो ये कह रहे हैं कि इन हाउस एक कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है। और भारत ने जिन प्राथमिकताओं को रखा है, अगर 2-3 छिटपुट चीज़ों को आप छोड़ दें तो एक आम सहमति बनती नजर आ रही है। बिल्कुल। કેદારભાઈ તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે દરેક જે કોઈ પણ નવો કન્સેપ્ટ હોય, નવો આઈડિયા હોય, તો એના બે પાસા હોય. એક હોય એનો પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ, એવી રીતે લાભ અને ગેરલાભ. હવે આપણે એને ગેરલાભ કરતાં પણ ચેલેન્જીસના સ્વરૂપમાં ઓળખીએ. પડકારો કયા હશે ફિનટેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવનારા સમયમાં? બીજો પ્રશ્ન પણ એડ કરી દઉં અજયજી, આપसे भी मैं पूछना चाहूँगा बाद में કે શું ભવિષ્યમાં ફિનટેક ઇન્ડસ્ટ્રી એ બેંક્સને રિપ્લેસ કરશે? ઓકે, બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સવાલ છે આ. સો પડકારો અને જે એ લોકોને ફર્ધર ચેલેન્જીસ આવવાના છે ફિનટેક ઇન્ડસ્ટ્રીને. સો અત્યાર સુધી ઘણા એવા મોડલ્સ બન્યા છે જેની માટે ગાઈડલાઇન્સ નથી બની. અચ્છા, રાઈટ. ઘણા ગવર્મેન્ટના એવા પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે ફ્રેમવર્કની અંદર કામ કરે છે, બટ દે રિક્વાયર્ડ અ પ્રોપર ગાઈડલાઇન, સો એવરીવન કેન વર્ક વેરી સ્મૂધલી વિથ અ ક્લેરિટી ઓન ઇટ. સો એક એ ચેલેન્જીસ છે કે પ્રોડક્ટ્સ ફાસ્ટ આવી રહી છે અને ગાઈડલાઇન્સ એના પછી એની ઉપર સ્ટ્રક્ચર્સ થઈ રહી છે. સેકન્ડ, અમુક પ્રોબ્લેમ્સ એ આવી શકે એમ છે કે જે રીતે બેન્કિંગ ચેનલ સેટઅપ છે ઇન્ડિયાની અંદર, એ બહુ રિજનલ રૂરલ એરિયા સુધી સેટઅપ છે. સો એવરી એરિયા વાઇઝ ટુ ગેટ અ રાઇટ નેટવર્ક કનેક્શન્સ અને એ ભારતને ઇન્ડિયા સાથે કેવી રીતે જોડવું ઇન ફિનટેક, એ એક ચેલેન્જ છે જ. કારણ કે એક માર્કેટ પ્રેક્ટિસ છે, બિહેવિયર છે યુઝરના. હજુ બી ઇન્ડિયામાં કેશ ઇઝ વેરી મચ હેપનિંગ. તમે અમુક ટાયર 1, 2, 3 સિટીમાં જાઓ, તેનું ચલણ હજુ બી ઇન્ડિયાની અંદર પર્સન્ટેજ ટર્મ્સમાં 70% છે. હવે આજે જ્યાં સુધી તમે ત્યાં સુધી ફાઇનાન્શિયલ ટેકનોલોજી નહીં લઈ જઈ શકો, ત્યાં સુધી આખું ઇન્ડિયા કવર નથી થતું. તો ધીઝ આર ધ નેચરલ ચેલેન્જીસ જે દરેક બિઝનેસમાં આવે છે. એન્ડ તમારો બીજો સવાલ કે બેંકને ફિનટેક રિપ્લેસ કરી શકે કે નહીં,
બેંક અને ફિનટેક વિલ બી અ ગુડ ફ્રેન્ડ્સ. એ લોકો સાથે ચાલશે. જી જેટલા એવા પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે બેંકના કોર પ્રોડક્ટ્સ નથી, જી. જેમ કે બેંક નેચરલી સ્ટાર્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મોડલ્સ માટે થાય છે, ટ્રેઝરી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે થાય છે, અસેટ્સ એફડી અને લોન્સ માટે થાય છે. એના સિવાયના જે બાકી બધા પ્રોડક્ટ્સ હોય છે જે ક્રિએટ થાય છે, એની માટે ફિનટેક્સ વિલ હેલ્પ બેંક્સ અ લોટ. જેમની ફિક્સ કોસ્ટ ઓછી કરી શકે છે, સ્લોલી પેનિટ્રેટ વધારે ફાસ્ટ કરી શકે છે ફિનટેક થ્रू. बराबर है. अजय, आपका क्विक रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन उसके बाद मैं एक प्रश्न भी पूछ लेता हूँ, आप उसका भी जवाब दीजिए. इंटरनेशनल टैक्स इवेजन की आप बात कर रहे थे, वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, वो भी आप बताइए, लेकिन पहले इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रश्न के तो उत्तर में? निश्चित मुझे लगता है कि वो कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपके जीवन को आसान बनाती है, वो कहीं ना कहीं जो पारंपरिक हमारी सेवाएं हैं उनको रिप्लेस करेगी. मिसाल के तौर पर यूपीआई अगर हमारे लिए आसान है इस्तेमाल करना, अगर वो ट्रस्टवर्दी है और लोगों को लगता है कि नहीं, एक बार घंटी बजी यूपीआई के तो आपके अकाउंट में वो तुरंत पहुंच गया, बिल्कुल. ये जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है और फिनटेक इंडस्ट्री ने इसको करके दिखाया है कि रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में इंडिया नंबर 1 है. और बिल्कुल. इसमें हमें प्राइड लेना चाहिए इस चीज़ को बिल्कुल. कि पूरे देश में आप यूपीआई जैसा ट्रांजैक्शन नहीं देखते हैं, लेकिन आप इंडिया में आप एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला इसका इस्तेमाल करता है, बड़े ही विश्वास के साथ उसका इस्तेमाल करता है. उसको कोई ये नहीं होता है कि हमारे पैसे कट गए, नहीं कट गए, वापस आएंगे नहीं आएंगे. ये हमने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है. तो जहाँ भी फिनटेक सॉल्यूशंस आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, बैंक को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे. और मुझे लगता है कि बैंकिंग सिस्टम में जो मुश्किलें थीं, जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम में, अगर टेक्नोलॉजी इसको सॉल्व करने की कोशिश करती है तो एक दोनों कॉम्प्लीमेंट्री करने की कोशिश करेंगे. जहाँ तक टैक्सेशन की बात है, ये एक बहुत ही पेचीदगी भरा एक तरह से पूरा सिस्टम है. जब तक इस पर वैश्विक सहमति नहीं बनती या एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते हैं, बहुत ही मुश्किल होगा. तो चाहे वो क्रिप्टो एसेट्स को टैक्स करने की बात हो या फिर आपके ट्रांसफ़र प्राइसिंग में बहुत सारे जो कंपनीज टेक ओवर करती हैं फॉरेन से, आपके डोमेस्टिक में आप टैक्स इवेजन करने के लिए कुछ शेल कंपनीज बनाई जाती हैं. तो ऐसा मानना है कि जब तक आप ग्लोबल कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. ये प्रोसेस मतलब मुझे कहने में इसमें संकोच नहीं कि बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है. मुझे अचानक नहीं लगता है कि इस पर सहमति बन पाएगी, लेकिन जिन देशों को नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का, वो ज़रूर इस पर बैठ करके कुछ न कुछ इस पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे. पर CBDC जैसा एक सिस्टम, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसा सिस्टम जिसको सब लोग अपनाएं और उसमें एक दूसरे पे भरोसा करें और रियल टाइम ट्रांजैक्शंस के लिए उसका इस्तेमाल करें, मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला जैसे ट्रांजैक्शंस को रिप्लेस करें टेक्नोलॉजी से, बड़ा मुश्किल. ऐसे कहने में आसान है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो इंटेंट, जो इल विल्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी से कैसे टैकल करना, ये एक स्ट्रगल हमेशा से चलता रहेगा. बट कोशिश ज़रूर ये की जाएगी कि जो टैक्सेशन की परेशानियां हैं उसको आपस में मिल करके सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, मुश्किल काम होने वाला है बिल्कुल. G20 के लिए. बहुत बहुत हम आशा करते हैं कि जो G20 की यहाँ पे आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स होगी वो फ्रूटफुल रहेगी, काफ़ी लाभदायी रहेगी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसका एक अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा. तो इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अजय आपका और केदार भाई આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, આપણા મુદ્દા આપણી વાત કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. તમામ બાબતો જે જટિલ બાબતો તેને સરળતાથી સરળ ભાષામાં સમજાવવાનો અહીં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આશા છે કે આપને આ ચર્ચા ગમી હશે. અત્યારે બસ આટલું જ. આવતા મંગળવારે ફરીથી એક નવા વિષય સાથે, નવા મહેમાન સાથે ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. નમસ્કાર.